کہاں تھے تم؟ حارث جو کب سے حاشر کو کال کر رہا تھا مگر وہ ریسیو کرنے کی بجائے بار بار کاٹ رہا تھا، اور اب آدھے گھنٹے بعد وہ انگلی میں چابی گھماتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مطلب کہاں تھا میں نے بتایا تو تھا کہ بائک خراب ہے۔ حاشر نے حارث کی بات سنتے لاپرواہی سے بتایا بائک خراب تھی یا نہیں بنوا رہے تھے جو اتنا ٹائم لگا؟ اور جب میں نے تم سے کہا تھا نورالین کو وقت پر یونیورسٹی سے پک کر لینا تو کیوں نہیں گیا؟ تمہیں پتا ہے آج تمہاری وجہ سے اس کی کتنی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ بے ہوش ہو گئی تھی وہ پریشانی سے۔ حارث نے سختی سے مگر اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے حاشر کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش۔ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ اور ایک تو اس کی پریشانی اور ڈر توبہ ہے، انسان خود کچھ ہمت کر لیتا ہے، اور میں اس کے موبائل پر کال کر رہا تھا پر وہ بند تھا، تبھی میں نے تمہارے نمبر پر کال کر کے بتایا۔ حاشر نے شرمندہ ہونے کی بجائے احسان جتلانے والے انداز میں کہا تو حارث کو مزید غصہ آیا، جو وہ فریحہ بیگم اور سارا کو آتا دیکھ ضبط کر گیا۔ یہ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے تھے اور میرے آتے ہی چپ کیوں ہو گئے؟ فریحہ بیگم نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو حارث نے حاشر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھپھو ہم سوچ رہے تھے کیوں نہ آپ کو اب تمام کاموں سے آزادی دے دی جائے۔ میرا مطلب ہے آپ ایسا کریں، حارث اور نورالین کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہاتھ پیلے کر دیں۔ ایک ساتھ دو بہو آئے گی تو سوچیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اس سارا کو تو کچھ آتا نہیں۔ اور فریحہ بیگم حاشر کی بات پر اسے ایک چت رسید کرتے سارا کی خوبیاں گنوانے لگی۔ اگلا ایک ہفتہ نور فریحہ بیگم کے کہنے پر یونیورسٹی نہیں گئی، اور آج حارث کی ڈانٹ پر وہ یونی آئی تو اس کی نظریں بس سب کی آنکھوں پہ ٹکی تھی۔ وہ ہر چیز میں اس شخص کا چہرہ تلاش کر رہی تھی جس نے اسے ایک ہفتے سے پریشان کیا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے یا اس دن کے واقعے کا ذکر کرتے اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لے، اس لیے وہ سر جھکائے جلدی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ پر اس سے پہلے ہی میم فاطمہ نے اسے آواز دی، جس پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ دل بھی تھم سا گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور اس دن کے متعلق اس سے پوچھیں گی۔ جی میم، اس نے حوصلہ کرتے رخ موڑا۔ نور، آپ کا فارم ابھی تک جمع نہیں ہوا اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے آج ہر حال میں مجھے سبمٹ کروا کے جائیے گا۔ اپنی بات کہتے وہ آگے بڑھ گئی تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نکال دیں۔ دل میں دعا کرتے اس نے کلاس میں قدم رکھا، اور اس دن کا تمام منظر ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنی چیئر سنبھالتے اس نے اپنی آنکھوں کو بھی آنسو بہانے سے روکا اور موبائل نکالتے بلا وجہ ہی اس میں چیزیں دیکھنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی جو اس کے قریب بیٹھی تھی اس نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ نور نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال پوچھتے نور کی نظروں میں سوال دیکھ کر ساتھ وضاحت بھی دی۔ وہ ایکچولی میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ختیجہ نے نرمی سے سوال کیا تو نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں بنائی۔ موبائل بیگ میں رکھتے اس نے جواب دیتے اس لڑکی کا جائزہ بھی لیا، جس کی ٹی شرٹ جینز کے ساتھ کھلے بال اور میک اپ سے اٹا چہرہ نور کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی کوئی فرینڈ نہیں، پلیز آپ میری دوست بن جائیں۔ ویسے بھی مجھے آپ کا یہ حجاب اور معصوم سا چہرہ بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے کہنے کے ساتھ ہی نور کا ہاتھ پکڑا تو اس کے انداز وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ جی ضرور، زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے نور نے اس بات میں سر ہلایا تو ختیجہ نے آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بس آج سے ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ نور کا جواب سنتے ہی ختیجہ نے خوش دلی سے کہا تو اس کے حلیے کے برعکس نور کو وہ اچھی لگی۔ تبھی وہ اس کی باتوں کا جواب دیتے خود بھی اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان چکی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ ختیجہ کا تھا، جو تھی تو نور سے کچھ سال بڑی، پر اپنی بات کرنے کے انداز اور سمجھ سوچ کی وجہ سے اس نے بہت جلد نور کو اپنے آپ سے مانوس کر لیا تھا۔
सारा दिन खतीजा के साथ रहने और उसकी बातों की वजह से नूर कुछ वक्त के लिए उस काली आंखों वाले का ख्याल अपने ज़हन से निकाल चुकी थी। वापसी पर उसने हारिस को भी अपनी दोस्त के मुतल्लिक बताया तो वो भी खुश था कि नूर के साथ यूनी में किसी का साथ बन गया। पर नूर के बार बार खतीजा नाम की गर्दान पर वो अब तंग आने के साथ साथ कुछ परेशान भी हुआ। अच्छा नूर, बस करो अब, और एक ही दिन में किसी पर इतना एतबार नहीं करते। कुछ वक्त लेते हैं किसी को जानने में ताकि पता चल सके कि वो शख्स एतबार के काबिल भी है या नहीं। हारिस ने हमेशा की तरह उसे समझाया तो नूर की जुबान को ब्रेक लगी। नहीं भाई, सच में वो बहुत अच्छी है, थोड़ी मॉडर्न है पर आदत और इखलाक को बहुत अच्छी है। नूर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। तुम खुद मासूम हो, इसलिए तुम जिससे भी मिलती हो तुम्हें वो शख्स भी अपने जैसा मासूम और अच्छा ही लगता है। लेकिन नूर, किसी पे इतनी जल्दी एतबार न किया करो, पहले कुछ देर उसे जांचा करो, उसके आदतों, बातों और तरीकाकार पर गौर किया करो। दुनिया में बहुत से लोग अपने चेहरों पर अच्छाई का नकाब चढ़ाए तुम जैसों को बेवकूफ बनाते हैं। आखिरी बात पर उसने हल्की सी चित नूर के सर पर रसीद की, जो अब किसी सोच में गुम थी। समझ आई कुछ या अगली भी गई? गाड़ी मार्केट के बाहर रुकते उसने पूछा तो नूर ने बोलने की बजाय इस्पात में सर हिलाया। ठीक है, मैं अब सुबह से उस लड़की से बात नहीं करूंगी। चेहरे पर फिक्र लिए उसने जितनी अक्लमंदी से कहा, हारिस का दिल अपना सर पीटने को किया। नूर, कब बड़ी होगी तुम? हद है, मैंने ये नहीं कहा कि उसे छोड़ दो, बस ये कहा कि सोच समझ कर एतबार किया करो, और ये जो दिमाग अल्लाह ने दिया है ना, इसे कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो। अब की बार साफ अल्फाज में कहते वो गाड़ी से उतरा और उसे भी उतरने का कहा। फरीहा बेगम के कहने पर वो नूर को मार्केट ले आया था, जहां उन्होंने उसकी और सारा की शादी की कुछ शॉपिंग की, और शाम गए जब वो घर लौटी तो सिकंदर साहब और हाशिर टीवी देखने में मसरूफ थे। सारा ने आते ही अपनी तमाम शॉपिंग सिकंदर साहब को दिखानी शुरू की, जिसे वो बहुत शौक और प्यार से देख रहे थे। नूर खामोशी से अपनी चीजें उठाकर कमरे में आ गई। उस दिन के बाद सिकंदर साहब अब उसे किसी बात पर नहीं डांटते, और फरीहा बेगम भी शायद उसकी शादी की वजह से उसे कामों का नहीं कहती, या फिर सारा में वो इतनी मसरूफ थी कि इन्हें अब नूर की ना कोई गलती नजर नहीं आती, जैसे बहाना बनाकर वो सिकंदर साहब को भड़का सकें। कमरे में आते ही एकदम उसका दिल भर आया। उसे आज आलिया बेगम की कमी शिद्दत से महसूस हुई, जिन्हें बस उसे तस्वीरों में देखा और हारिस और हाशिर से सुना ही था। अम्मी, काश आप जिंदा होती तो मैं आपको बता सकती कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। दराज से आलिया बेगम की तस्वीर निकाल कर देखते वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक हुई और साथ ही आरजे के मैसेजेस आने लगे, जो अपनी ऑफिस की किसी मसरूफियत की वजह से सारा दिन उससे बात नहीं कर पाया था। कहाँ हो यार, कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खाया, दिन कैसा गुजरा, मुझे मिस तो नहीं किया होगा, जैसे कई मैसेजेस उसने सेंड किए हुए थे। नूर ने मोबाइल उठाते मैसेजेस का जवाब देने की बजाय उसके नंबर पर कॉल की, जिस पर जैन को न सिर्फ हैरत हुई बल्कि उसने कॉल रिसीव करने की बजाय बेयकीनी से स्क्रीन को देखा, क्योंकि इन 4 सालों में पहली बार नूर ने उसे कॉल की थी। क्या हुआ, कॉल क्यों कर रही हो? उसे लगा शायद कोई और कॉल कर रहा है, इसलिए उसने कंफर्म करना जरूरी समझा। मुझे बात करनी है। नूर, जो आज खुद को बहुत बेबस और अकेला महसूस कर रही थी, पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि इतने साल बाद उसने खुद से जैन से ये बात कही। ओके, मैं करता हूँ। मैसेज पढ़ते जैन ने उसका नंबर डायल किया और मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ फोन उठाने का इंतजार करने लगा। नूर, क्या हुआ? कॉल रिसीव होते ही उसने रोने की आवाज सुनी तो वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है यार, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? जैन ने फिर से सवाल किया। नूर ने अपनी आंखें साफ करते दरवाजा लॉक किया और बालकनी में आ गई। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है? बेचैनी से अपना सवाल दोहराते वो दूसरी तरफ उसके बोलने का मुंतजिर था। आरजे। नूर ने उसका नाम लिया और साथ ही फिर से रोने लगी। क्या हुआ है, बोलो नूर, देखो तुम मुझे अब परेशान कर रही हो।
मुझे बताओ किसने कुछ कहा है? जैन ने उसकी आवाज सुनते जो उसकी सोच से भी ज्यादा नरम थी फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं कहा। नूर ने खुद पे जब्त करने के बावजूद भी टूटे अल्फाज में जवाब दिया। अच्छा रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा रोना परेशान कर देता है, तकलीफ देता है, प्लीज चुप करो और बताओ क्या हुआ है। जैन ने उसे बहलाने की कोशिश करते बोलने के लिए उकसाया। वो नहीं जानता था कि ये लड़की कब इसके लिए इतनी खास हो गई कि उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी उसका दिल तड़प उठता था। आरजे वो नूर ने उसे कुछ बताना चाहा, मगर उससे पहले ही एकदम से घर की लाइट चली गई। नूर ने चारों तरफ घरों में जलती लाइट्स को देखते एक नजर अपने घर को देखा तो उसे समझ आई कि बस उनके घर की लाइट बंद हुई है। अंधेरे से घबराते उसने जैन को जवाब देने की बजाय कॉल काटी और मोबाइल की लाइट ऑन करते बालकनी से कमरे में आई ताकि बाहर जा सके, मगर उससे पहले ही किसी ने पीछे से आते उसे अपने हसार में कैद किया और उसके चीखने से पहले ही उसके मुंह पे हाथ रखते उसकी आवाज को बाहर जाने से रोका। किससे बात कर रही थी? उसके बाल हटाकर उसके कान के करीब होते उस शख्स ने सरगोशी की तो नूर की आंखें पूरी खुल गईं और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे क्लीन पर गिरा। मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते ज़रून के लहजे में पहले से ज्यादा सख्ती थी। वो नूर ने उसके चेहरे को देखा जो आज भी रुमाल से ढका हुआ था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अपनी उंगलियां उसकी कमर में धंसते उसने अल्फाज को भी इतनी ही सख्ती से अदा किया। वो नूर ने उसकी सुर्ख आंखों में देखते कुछ बोलना चाहा, मगर खौफ के मारे उसके अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके थे। क्या वो कौन था जिससे बात कर रही थी? और जब मैं एक बार कह चुका हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो तो समझ नहीं आती। उसकी कमर पर दबाव डालते खुद से मजीद करीब करते वो जितने गुस्से से बोला, नूर को अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। वो मैं क्या किसी गैर महरम से तो बड़ी बातें कर लेती हो और बड़ा रो रही थी उसके सामने और महरम को देखते ही बोलती बंद हो गई। वाह क्या बात है। तो मस्खराना अंदाज में कहते वो अब उसको दीवार के साथ लगा चुका था। प्लीज। नूर ने उसे खुद से करीब होता देख अपने दुपट्टे को दोनों हाथों में दबोचे आंखें बंद की तो ज़रून ने उसके चेहरे पर आती बालों की लटों को पीछे किया। जान हो तुम मेरी, और जो इंसान मेरा हो वो बस मेरा ही होता है। मैं किसी भी तौर शराकत बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए दोबारा ख्याल रखना और अपने ये आंसू सिर्फ तुम मेरे लिए बहाया करो क्योंकि ये तुम्हें मजीद खूबसूरत बना देते हैं। हाथ की पोरों से उसकी रुखसार पर बहाते आंसुओं को साफ करते वो उसके अंदाज में नरमी आ चुकी थी। उसने आंसू साफ करते उसके सुर्ख रुखसार को छुआ तो नूर को उससे खौफ और वहशत महसूस हुई और उसे अपने ऊपर झुकता देख नूर ने मज़ाहमत की, मगर ज़रून ने उसकी कोई बात सुने बगैर एक बार फिर से अपने लम से वाकिफ करवाया, जिस पर नूर ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करने की कोशिश की, मगर वो किसी चट्टान की मानद खड़ा उसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। इससे पहले कि वो मजीद कोई पेशरफ्त करता, दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तक ने नूर के साथ साथ उसे भी होश की दुनिया में लाते अलग होने पर मजबूर किया। लव यू बेबी, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, बस दोबारा किसी और से बात करने की गलती मत करना। अपना रुमाल ठीक करते वो हारिस की आवाज पर जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करते बालकनी की तरफ बढ़ा तो नूर ने हारिस की आवाज और तेज होती दस्तक पर जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और वहां हारिस को हाथ में टार्च पकड़े खड़े देखकर जल्दी से उसके साथ लगते जोर जोर से रोने लगे, जो उसे जनरेटर खराब होने का बताता लाइट जल्द आ जाने की तसल्ली देते नीचे ले आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो मिलते हैं इसकी अगली किस्त में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।